Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revised your previous chapters. So today we are going to start our chapter 5, which is PowerPoint Advanced Features. तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे PowerPoint जो हमारा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसके बारे में, उसमें कौन कौन से एडवांस्ड फीचर्स हैं, क्या उन फीचर्स का यूज है और कैसे वो हमारी प्रेजेंटेशन को एनहांस करते हैं. So without wasting any time, let's understand the chapter. The name of our chapter is PowerPoint Advanced Features, and the topics which we will learn are animation effects, applying transition effects, inserting sound clips, inserting video files, slideshow tab options, and running the slideshow. And next is printing a presentation. Now, students, let us recall the basic concept of MS PowerPoint. Presentation क्या होता है? Collection होता है of slides arranged in a sequential manner to convey new ideas and impart information effectively. A slide is like a page in presentation. Slide होता है एक page in a presentation containing a brief information that you want to communicate to your audience. जो आप अपने audience के साथ communicate करना चाहते हो. In previous class, you have learned many features like adding pictures, shapes, and charts to enhance the look of a presentation. In this lesson, you will learn some new features of PowerPoint 2016 that make the presentation more interesting. You will also know about the various views in which you can create and organize your presentation. Now, first is animation effects. You can add animation effects. आप animation effects add कर सकते हो to object जैसे text, pictures, charts and so on. Animation effects जो होते हैं वो enhance करते हैं visual appeal को of a presentation and help करते हैं to grab the attention of the audience. PowerPoint ऑफर करता है बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स. दीज हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड अंडर 4 कैटेगरीज. यानी कि PowerPoint के जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं उन्हें हमने 4 तरीके की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. पहला होता है एंट्रेंस इफेक्ट्स. ये जो इफेक्ट होते हैं ये कंट्रोल करते हैं एक मैनर इन विच जो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द स्लाइड शो. सम ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट्स अंडर दिस कैटेगरी आर शोन इन दिस फिगर. तो जैसे यहाँ पे अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप, शेप, व्हील, रैंडम बार्स, ग्रो टर्न, जूम, स्विवल, बाउंस, ये सब क्या है? हमारे एंट्रेंस एनिमेशन है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे हमारी स्लाइड में, हमारी प्रेजेंटेशन में एंटर करेगा ड्यूरिंग द स्लाइड शो. सेकेंड हमारे पास होता है एम्फेसाइज इफेक्ट. ये क्या करते हैं? ये जो इफेक्ट होते हैं ये अकर होते हैं जब भी जो ऑब्जेक्ट है हमारी स्लाइड पे ड्यूरिंग द स्लाइड शो. जब भी कोई ऑब्जेक्ट अकर होता है हमारी स्लाइड शो पे होता है तो उस टाइम पे जो इफेक्ट अप्लाई किया जाता है वो एम्फेसाइज इफेक्ट होता है. They are used to emphasize the object. So now some of the animation effects under this category are shown in the figure. तो emphasize में हमारे पास आते हैं जैसे pulse, color pulse, teeter, spin, grow, shrink, distort and many more. Now next होते हैं हमारे पास exit effect. Exit effect कंट्रोल करते हैं कि एक ऐसी मैनर जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिट होगा, यानी कि हमारी स्लाइड से, हमारे स्लाइड शो से रिमूव होगा, एग्जिट होगा. उसमें हम जो एनिमेशन लगाते हैं वो हमारी एग्जिट इफेक्ट होती है. सम ऑफ द एनिमेशन इफेक्ट्स अंडर दिस कैटेगरी आर शोन इन द फिगर जैसे डिसअपियर, फेड, फ्लाई आउट, फ्लोट आउट. तो ये सब हमारे एग्जिट इफेक्ट्स होते हैं. Next is motion paths. These effects enable objects to move from one position to another on the slide on a specified path during the slide show. मतलब ये जो इफेक्ट्स होते हैं मोशन पाथ्स, ये क्या करते हैं? हमारे ऑब्जेक्ट को एनेबल करते हैं कि वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सके एक ही स्लाइड पे on a specific path during the slide show. Some of the animation effects under this category are shown in the figure like lines, arcs, turns, shapes, loops, custom paths. नेक्स्ट इज अप्लाइंग एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन अप्लाई करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू टू अप्लाई एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्लाइड, फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लिक ऑन एनिमेशन टैब. अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिस पे भी हमें एनिमेशन अप्लाई करनी है एंड देन हम एनिमेशन टैब पे क्लिक करेंगे. इन स्टेप 2, इन द एनिमेशन ग्रुप क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो. एनिमेशन ग्रुप में जो मोर ड्रॉप डाउन एरो होता है हम उस पर क्लिक करेंगे टू व्यू द अवेलेबल एनिमेशंस. Then in step 3, scroll through the list. हमें लिस्ट को स्क्रॉल करना है और सिलेक्ट करना है desired animation effect. जो options given है at the bottom of the above list can help you to find even more animation effects. The object will now have a small number next to the
नेक्स्ट इट टू शो दैट इट हैज एन एनिमेशन, ये जो ऑब्जेक्ट होगा जिस पे हमने एनिमेशन अप्लाई करी है उस पर एक छोटा सा नंबर का बॉक्स आ जाएगा जो ये बताएगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन अप्लाइड है. In this slide pane, the slide will now have a whooshing star symbol next to it. In step 4, in the start field, the timing group में जो start field होती है वहां पे हम select कर सकते हैं whether you want to start the animation on mouse click, मतलब जब आप माउस पे क्लिक करोगे तब आपकी एनिमेशन स्टार्ट होगी, या फिर आप चूज कर सकते हो विद प्रीवियस एनिमेशन और आफ्टर प्रीवियस एनिमेशन. इसका मतलब है जो आपने एनिमेशन पहले अप्लाई करी है उसके पहले ये चलेगा, या उसके साथ चलेगा, या उसके बाद चलेगा. देन इन स्टेप 5 जो ड्यूरेशन फील्ड होती है वहां पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपने एनिमेशन की ड्यूरेशन को, यानी कि इन द डिले फील्ड आप स्पेसिफाई कर सकते हो टाइम कि कितना सेकंड्स डिले होना चाहिए, आफ्टर विच द एनिमेशन शुड स्टार्ट प्लेइंग कि कितने टाइम बाद आपकी एनिमेशन प्ले होना स्टार्ट होनी चाहिए. फिर आप स्टेप 6 में क्या करोगे, आप ऑल्सो सेलेक्ट कर सकते हो मोर ऑब्जेक्ट्स टू एड एनिमेशन टू देम. देन टू प्रीव्यू द एनिमेशन, एनिमेशन को प्रीव्यू करने के लिए आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर सकते हो प्रीव्यू ग्रुप में से, एंड ऑल द इफेक्ट्स विल प्ले थ्रू ऑटोमेटिकली, सारे इफेक्ट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे. देयर इज अ बूस्टर विच सेज सम एनिमेशन इफेक्ट्स हैव एक्स्ट्रा ऑप्शंस, कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स के पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लाई इन इफेक्ट जो होता है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट कम्स फ्रॉम, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट आ रहा है. These options can be accessed from the effect option button in the animation group. Adding multiple animation to an object, एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल एनिमेशंस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं. Sometimes we may want to add more than one animation effect to an object. For example, both an entrance and exit effect. Suppose कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको अपनी स्लाइड पे उसकी एंट्रेंस एज वेल एज एग्जिट दोनों पे एनिमेशन चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एड एनिमेशन बटन. हमारे पास एक बटन होता है ऐड एनिमेशन का जिससे हम एक ही ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं. दैट अलाउ अस टू कीप द करंट एनिमेशन व्हाइल एडिंग न्यू वंस. टू डू दिस फॉलो द गिवन स्टेप्स. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन स्टेप 1 सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट एंड ओपन द एनिमेशन टैब. इन स्टेप 2 इन द एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप, एडवांस्ड एनिमेशन ग्रुप में आपको ऐड एनिमेशन बटन मिल जाएगा, उसे चूज करना है. देन इन स्टेप 3 सेलेक्ट करना डिजायर्ड एनिमेशन इफेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट एज इट इज शोन हियर. ये आपका क्या है, ऐड एनिमेशन बटन है, इसको आप चूज करोगे तो हमारे आपके पास सारी एनिमेशन इफेक्ट्स आ जाएंगे. फिर यू कैन स्पेसिफाई स्टार्ट ड्यूरेशन डिले प्रॉपर्टीज फॉर ईच इफेक्ट इन द टाइमिंग ग्रुप, और आप एक्सेप्ट कर सकते हो डिफॉल्ट वैल्यूज को. अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं. ट्रांजिशन इफेक्ट अपीयर होते हैं जब भी हम एक स्लाइड से चेंज होकर दूसरी स्लाइड पे जाते हैं ड्यूरिंग अ स्लाइड शो व्यू. यू कैन अप्लाई ट्रांजिशन इफेक्ट टू अ स्लाइड सिंगल स्लाइड एज वेल एज टू द स्लाइड्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन. जब हम अपनी प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं तो वहां जो इफेक्ट डलता है उसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं, और ट्रांजिशन हम एक स्लाइड पे भी डाल सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन की सारी स्लाइड्स पे भी डाल सकते हैं. फॉलो दीज स्टेप्स टू ऐड ट्रांजिशन इफेक्ट. सेलेक्ट द स्लाइड ऑन विच यू वांट टू अप्लाई ट्रांजिशन, वो स्लाइड सेलेक्ट करनी है जिसपे हम ट्रांजिशन को अप्लाई करेंगे. क्लिक ऑन ट्रांजिशन टैब. ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप अपीयर हो जाएगा ऑन द रिबन डिस्प्लेइंग मल्टीपल ट्रांजिशन इफेक्ट्स. फिर आप वहां से मोर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे टू डिस्प्ले ट्रांजिशन इफेक्ट. सेलेक्ट करोगे एनी ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइसेस. द करंट स्लाइड विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ सिलेक्टेड इफेक्ट. जो आपकी करंट स्लाइड है वो आपकी सिलेक्टेड इफेक्ट का प्रीव्यू शो करेगी. सेलेक्ट कर सकते हैं इफेक्ट ऑप्शन को इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप टू चूज इफेक्ट्स फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट. And for some transition like curtains, presage, this option remains deactivated. Click on the drop down arrow of sound option. Sound option को आप drop down arrow पे आप क्लिक करोगे टाइमिंग ग्रुप में से और सेलेक्ट करोगे कोई भी साउंड इफेक्ट ऑफ योर चॉइस. क्लिक कर सकते हो प्रीव्यू बटन पे जो प्रेजेंट होता है एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे रिबन के टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट. स्पेसिफाई करेंगे हम ट्रांजिशन टाइमिंग को एंटर करके नंबर ऑफ सेकेंड्स और मिनट्स इन द ड्यूरेशन बॉक्स इन टाइमिंग ग्रुप. सेलेक्ट कर सकते हैं ऑन माउस क्लिक चेक बॉक्स इफ यू वांट द एडवांस द स्लाइड बाय क्लिकिंग द माउस. आफ्टर क्लिक ऑन आफ्टर चेक बॉक्स इफ यू वांट द स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट वन. अगर आप चाहते हो जो स्लाइड है वो ऑटोमेटिकली एडवांस हो जाए दूसरी के लिए भी, तो आप क्या करोगे, आफ्टर चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे. फिर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप स्पेसिफाई कर सकते हो स्लाइड एडवांस टाइमिंग्स को इन अ स्पिन बॉक्स. नेक्स्ट इज क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन.
टू अप्लाई द सिलेक्टेड इफेक्ट ऑन ऑल स्लाइड, ताकि वो सारी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए, इसलिए आप सिलेक्ट टू ऑल बटन को चूज करोगे, अदरवाइज दोज इफेक्ट्स विल बी अप्लाइड ओनली द करंट स्लाइड। ओपन द स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब को आप ओपन करोगे और क्लिक करोगे फ्रॉम बिगनिंग बटन को, तो जो प्रेजेंटेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम बिगनिंग अलॉन्ग विद द अप्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। इंसर्टिंग साउंड क्लिप्स, साउंड क्लिप्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? म्यूजिक या फिर साउंड इफेक्ट्स जो होते हैं वो कंप्लीटली नई डायमेंशंस दे देते हैं हमारी प्रेजेंटेशन को, तो हम ऐड कर सकते हैं साउंड इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक या फिर स्पेशल इफेक्ट्स, ताकि हम उसकी इंपॉर्टेंस दे सकें एट सर्टेन पॉइंट्स। साउंड फाइल्स जो होती हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं फ्रॉम फाइल्स जो हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं। यू कैन इवन रिकॉर्ड योर ओन साउंड, हम अपनी खुद की साउंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। एडिंग साउंड फ्रॉम अ फाइल, अगर हम किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल से साउंड को ऐड करते हैं तो व्हाट वी विल डू, सेलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड साउंड, उस स्लाइड को चूज करना है जहां पे हमें साउंड ऐड करनी है। सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट टैब को और क्लिक करेंगे ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो पे, एरो इन द मीडिया ग्रुप, जो मीडिया ग्रुप में होता है, हमने इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। उसके बाद में हम चूज करेंगे द ऑडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन मेन्यू, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑडियो ऑन माई पीसी, इसको चूज करेंगे। फिर इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और उसमें से हमें लोकेट करना है अपना ऑडियो फोल्डर और सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड फाइल। ऑडियो फोल्डर में जाके हम देखेंगे एक रिक्वायर्ड फाइल जो हमें इंसर्ट करनी है, फिर हम इंसर्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो वो पर्टिकुलर ऑडियो इंसर्ट हो जाएगी। यू विल नोटिस जो स्पीकर आइकन है स्लाइड पे, टू एडिशनल टैब्स आते हैं नेम्ड एज फॉर्मेट एंड प्लेबैक अपीयर इन द ऑडियो टूल टैब ऑन द रिबन। प्लेबैक टैब के ऊपर ऑडियो ऑप्शन ग्रुप में आप सेलेक्ट कर सकते हो ऑटोमेटिकली या फिर ऑन क्लिक ऑप्शन को फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ स्टार्ट फील्ड। देन ऑटोमेटिकली ऑप्शंस जो होते हैं विल स्टार्ट द साउंड ऑटोमेटिकली एज सून एज द स्लाइड अपीयर इन स्लाइड शो व्यू। जैसे ही आपकी स्लाइड शो व्यू में आएगी तो ऑटोमेटिकली जो साउंड है वो अपीयर होगी। वेयर एज अगर आप ऑन क्लिक चूज करते हो तो आपकी साउंड तब प्ले होगी जब आप क्लिक करोगे। टू प्ले साउंड क्लिक ऑन द स्पीकर आइकन, साउंड को प्ले करने के लिए आप स्पीकर आइकन पे क्लिक करोगे, द प्ले एंड पॉज टैब अपीयर हो जाएंगे राइट बिलो द स्पीकर आइकन। इंसर्टिंग योर ओन साउंड, अगर आप अपनी खुद की साउंड ऐड करना चाहते हो तो व्हाट यू विल डू, टू ऐड योर ओन साउंड टू द स्लाइड फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड इट, आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। while recording your sound it is essential to connect a microphone, जिस टाइम आप रिकॉर्ड कर रहे हो वो essential है कि आप माइक्रोफोन को कनेक्ट करो टू योर कंप्यूटर। फॉलो दी स्टेप्स, सबसे पहले सेलेक्ट करोगे आप स्लाइड जहां पे भी आपको इंसर्ट करनी है रिकॉर्डेड साउंड, फिर आप क्लिक करोगे ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो पे इन द मीडिया ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, वहां से आप चूज करोगे रिकॉर्ड ऑडियो ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू विच इज दिस। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, द रिकॉर्ड साउंड बॉक्स अपीयर्स, ये रिकॉर्ड साउंड का बॉक्स अपीयर होगा, वहां पे से आप क्लिक करोगे ऑन रिकॉर्ड बटन टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड क्लिक करोगे स्टॉप बटन पे व्हेन यू फिनिश रिकॉर्डिंग। नाउ आप यूज कर सकते हो प्ले बटन को टू लिसन द रिकॉर्डेड साउंड एंड क्लिक ऑन ओके इफ यू वांट टू यूज इट। फिर जो ऑडियो फाइल होती है वो इंसर्ट हो जाएगी आपकी स्लाइड पे। वंस द ऑडियो फाइल इज इंसर्टेड द ऑडियो क्लिप आइकन अपीयर्स ऑन द स्लाइड, द फॉर्मेट एंड प्लेबैक टैब भी अपीयर हो जाएंगे व्हेन यू क्लिक द ऑडियो क्लिप आइकन ऑन द स्लाइड। नेक्स्ट इज इंसर्टिंग वीडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, पावर पॉइंट प्रोवाइड करता है ऐसे ऑप्शंस जिनसे हम इंसर्ट कर सकते हैं वीडियोस ऑन स्लाइड्स एंड ऑल्सो ऑप्शंस फॉर एडिटिंग द वीडियो। Select the slide where you want to insert the movie file and follow the steps. Click on the Insert tab. Click on the drop-down arrow under Video option in the Media group. जैसे पहले हमें ऑडियो ग्रुप पे क्लिक किया था, इस बार हमें वीडियो ग्रुप पे क्लिक करना है। Then choose the video on my PC option. The Insert Video dialog box appears. यहाँ से आप चूज करोगे वीडियो ऑन माई पीसी ऑप्शन को और ये डायलॉग बॉक्स आपके पास अपीयर हो जाएगा। यहाँ से आप डिजायर्ड वीडियो चुन सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन इंसर्ट बटन, उसको ऐड कर सकते हो, वीडियो जो है वो ऐड हो जाएगी टू द स्लाइड। फॉर्मेट और प्लेबैक टैब अपीयर हो जाएंगे जब आप क्लिक करोगे इंसर्टेड वीडियो पे। फॉर्मेट टैब के पास ऑप्शंस होते हैं अपनी वीडियो को फॉर्मेट करने के लिए और यू कैन फॉर्मेट द इंसर्टेड वीडियो बाय चेंजिंग द वीडियो स्टाइल, adding borders, applying video effects, making image corrections and adjusting the image color. Next is playing the video. You can play the inserted video by following steps. आपने जो भी वीडियो इंसर्ट करी आप उसको प्ले कर सकते हो। क्लिक करोगे आप इंसर्टेड वीडियो क्लिप पे, फिर
click on the play and pause button below the video clip. वीडियो क्लिप के नीचे जो प्ले और पॉज बटन होता है विच इज दिस, उस पर आप क्लिक करोगे, जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगी एंड द टाइम लाइन नेक्स्ट टू द प्ले पॉज बटन विल बिगिन टू एडवांस। जो टाइम लाइन आ रही है ये वीडियो की वो भी स्टार्ट हो जाएगी। क्लिक एनीवेयर ऑन द टाइम लाइन टू जंप टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वीडियो। और अगर आपको कुछ पार्ट स्किप करना है तो आप अपनी टाइम लाइन पे क्लिक करके वीडियो को आगे बढ़ सकते हो। देयर इज अ बूस्टर विच सेज रीसाइजिंग हैंडल अपीयर होता है अराउंड द वीडियो व्हेन यू क्लिक ऑन इट। यू कैन क्लिक एंड ड्रैग द हैंडल्स टू रीसाइज द वीडियो। आप हैंडल्स पे रीसाइज हैंडल पे क्लिक करके अपने वीडियो को रीसाइज कर सकते हो। स्लाइड शो टैब ऑप्शंस। वंस यू हैव प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन, जब आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए, वी वुड लाइक टू शो इट टू आवर ऑडियंस, हमें अपनी ऑडियंस को दिखानी होती है इन द फॉर्म ऑफ अ स्लाइड शो। पावर पॉइंट ऑफर करता है नंबर ऑफ ऑप्शंस इन स्लाइड शो टैब टू प्रेजेंट द स्लाइड शो इफेक्टिवली। तो ऑप्शंस इन द स्लाइड स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप हेल्प्स अस टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन डिफरेंट वेज। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास फ्रॉम बिगनिंग। ये बटन स्टार्ट करता है हमारी स्लाइड शो को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड। फ्रॉम करंट स्लाइड क्या करता है, ये बटन स्टार्ट करता है हमारे स्लाइड शो को जिस करंट स्लाइड पे हम वर्क कर रहे हैं। प्रेजेंट ऑनलाइन क्या करता है, ये बटन अलाउ करता है दूसरों को टू सी योर स्लाइड शो इन अ वेब ब्राउजर। कस्टम स्लाइड शो बटन जो होता है ये हेल्प करता है टू शो ओनली सेलेक्टेड स्लाइड्स ऑन अ प्रेजेंटेशन। Option in the setup group helps us to set up slide in different ways. Slide up slide show क्या करता है, setup slide show ये बटन हमें हेल्प करता है टू सेटअप अ मैनुअल और ऑटोमेटिक स्लाइड शो। हाइड स्लाइड क्या करती है, ये बटन हाइड कर देती है किसी स्लाइड को ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। रिहर्स टाइमिंग ऑप्शंस जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू हैव अ रिहर्सल रन ऑफ अ स्लाइड शो। रनिंग अ स्लाइड शो, you can run your presentation in a following way. To start your slideshow, click on slideshow button. हम slideshow button पे click करेंगे of the presentation view group on the view tab. यूज कर सकते हैं arrow keys को और the bottom of the screen to move forward backward in a presentation. हम प्रेस कर सकते हैं escape key को to end the slideshow. Next is printing a presentation. Presentation को हम print कैसे कर सकते हैं? There are many options which are available for printing a presentation. They are, पहला होता है slides. Slides are like pages of a presentation. Handouts क्या होते हैं, ये ऑप्शन अलाउ करता है to have more slides in a page. Notes page क्या करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं slides को और speaker notes को. Outline view, this will print the outline of the presentation. The various steps to take a print out are: Step 1, क्लिक ऑन द फाइल टैब। हमें सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। स्टेप 2 में क्लिक करोगे आप प्रिंट ऑप्शन पे, अ प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। देन इन स्टेप 3 प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर आप क्लिक करोगे एरो पे नेक्स्ट टू प्रिंट एंड इन स्टेप 4 आप चूज करोगे ऑप्शंस एज रिक्वायर्ड एंड देन यू विल क्लिक ओके टू प्रिंट। बिफोर टेकिंग द प्रिंट आउट यू कैन सी इट्स प्रीव्यू। प्रिंट आउट लेने से पहले आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो ऑन योर स्क्रीन। And then in last step to exit print preview, click on the close printout button. Let's do a quick recap of the chapter. Presentation एक collection होता है slides का जो arrange होते हैं sequential manner में to convey new ideas and impart information effectively. Animation effects enhance कर देते हैं visual appeal को of a presentation and help करते हैं to grab the attention of the audience. ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर होते हैं जब हम एक स्लाइड से चेंज होकर दूसरी स्लाइड पे जाते हैं ड्यूरिंग अ स्लाइड शो व्यू। म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स कैन एड अ कंप्लीटली न्यू डायमेंशन टू एनी प्रेजेंटेशन। साउंड फाइल्स कैन बी एडेड फ्रॉम द फाइल स्टोर्ड ऑन योर कंप्यूटर। यू कैन इवन रिकॉर्ड योर ओन साउंड। देन टू एड योर ओन साउंड टू द स्लाइड, फर्स्ट यू हैव टू रिकॉर्ड इट। While recording your sound, it is essential to connect a microphone to your computer. PowerPoint lets you insert videos on the slides and also provides options for editing the video. PowerPoint offer करता है number of options in a slideshow tab to present the slideshow effectively. To start a slideshow, click on slideshow button on the presentation view group on the view tab. Let's complete the exercise. Now, our very first question is tick the correct option. And first is the dash tab has the options to print slides, file. Which of the following is not a category under animation effect? Entrance, enhance, emphasize, and enhance.
The animation pane button is available on the animations tab. Dash effects can be added to an object in a slide animation. Transition effects can be seen in slideshow view. Next is true false. Pictures on a slide cannot be animated. False. Slides can be printed on a paper in landscape orientation only. False. Video clips can be added to a slide by selecting the Home tab. False. Media group is present in the Insert tab. True. The speaker icon on a slide cannot be moved or resized. False. Next is fill in the blanks. Dash effect enhance the visual appeal of a presentation. Animation. Dash effects appear when one slide changes to other during a slideshow transition. So the next is dash and dash tab appear when you insert an audio file on a slide. So it is format and playback. A slide having animation applied to its object will have a whooshing star symbol next to it in the slide pane. To preview an animation effect, click on the Preview button in Animation tab. So students, this was your complete chapter about the advanced features of PowerPoint. I hope it is clear to you. Do revise the chapter again and also learn your exercise. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye-bye.